Hello friends, I welcome you once again to the AFOSOP video tutorial series, a presentation by the Academy for Life Skills Development. Today we will see the briefing for the half group tasks. So far we have already seen the briefing for the group discussion, group planning exercise, progressive group task and command task, and today we will do half group task. Now before you watch this video, to understand this complete series clearly, I'll request you to watch the following videos. One is the significance of the first 4 tasks in the GTO series, understanding GTO outdoor task part 1 and part 2, structure analysis part 1, briefing for the progressive group task, briefing for the command task, and load ka such. So I'll request you to watch this, only then watch this video, so that will make clearer and deeper meaning. So let us see the briefing. The briefing for the half group task goes like this. Gentlemen, so far you have been working as a group. At times, some of you might have felt that with so many of you working together, you did not have adequate scope to show your best. To give you an opportunity for the same, we will have the half group tasks. Now listen to the first part. If you compare this part with the command task briefing first paragraph, I'll request you to just make a comparison and give me a feedback in the comment box. What do you see? Do you find there is a similarity? You will realize there is a similarity. In fact, I'll make a separate video once I finish with the briefing for the final group task, and then you will realize these 4 tasks, that is PGT, HGT, command task and final group task, technically what as a candidate you have to do is absolutely identical. Start line se shuru karna, finish line ko cross karna. So the details of it is given in GTO outdoor task part 2. So what's that? So as far as a candidate is concerned, for him it is absolutely identical. Start line se shuru karo, finish line se kabhi pura group, kabhi aadha group, kabhi individual, and final group task mein dobara. So it is like, if you know how to do structure analysis, you can do it in PGT, you can do it in HGT, you can do it in command task, you can do it in final group task. Only thing is whether are you able to do it in a group or not. So this task gives you an opportunity because the group size becomes smaller. In command task it is completely different because वहां पे आपको बॉस बना दिया जाता है. Even if you're a डब्बा, you're still the boss. इसका मतलब है no interference from others. You have the complete freedom to do the task your way. Are they interested in watching at your execution capacities or creation, analysis, idea creation? सोच के देखना. So just see the first paragraph of the command task जो मैंने last time apply किया था. Anyway, looking at this, at times some of you might have felt that so many of you working together, which was the task PGT. So they are referring to this PGT. PGT में what is it? There are 4 obstacles. Obstacle number 1 is the most simplest one. Let's call it direct bridging in होता है यहाँ पे. Obstacle number 2, it is little higher than that. यहाँ पे certain indirect bridgings are happening. Obstacle number 3, it's very complex because यहाँ पे complex bridging is there. So we'll see what does it mean. What is obstacle number 4? We'll see. It is it's quite a difficult task. So as you move further, there again start line, finish line, start line, finish line. What is changing? The structure, the designing of the structure, the complexity of the structure. What does it mean? कि जैसे जैसे task आगे जाता है, उतना आपका intellectual involvement to create idea after analyzing the structure, the timing will increase. So initial task PGT 1, 2 will be very fast. PG 3 में अटकना शुरू हो जाएंगे. So this argument कि you take the फट्टा ब्रिगेडियर वाला आइडिया बन जाएगा, आप रस्सी बांध लो. No. रस्सी कहाँ बांधना वही नहीं पता चलेगा आपको. So we'll see that there is a similarity between command task का briefing first paragraph and this briefing. Just look, but there is a difference. यहाँ पे still it is in a form of a group. Only thing it's a smaller group. There it is one individual command task. So देखो कहाँ पे GTO क्या कर रहा है, वो अंदर घुस रहा है बुरी तरह से individual के अंदर. We'll see that. I'll make a separate video comparison these 4. Okay, anyway, so it says to give you an opportunity for the same, to show your best. To show your best what? रस्सी बांधना, फट्टा लगाना? No. Because structure group छोटा हो गया है, so it's a smaller group, 5 to 4 or whatever, 5, 4, 3, depending on what's the group strength. The smaller group is looking at the task, so you have better opportunities. So there is a mechanism of doing the half group grouping and all that. We'll discuss sometime else. So please understand what opportunity he is giving you. He is giving you in a smaller group. Can you analyze the structure? Can you function? Can you create idea? Can you execute
taking your input and others input. So understand क्या बोल रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनना, इस ब्रीफिंग को ध्यान से समझो, बहुत समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ. So again, structure analysis, idea creation and idea communication, and of course last में idea execution. So इन चीजों का इसी सीक्वेंस में आपके लिए अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करता दिस टास्क बिकॉज ऑफ द स्मॉलर ग्रुप्स. आई होप आई एम मेकिंग सेंस. सो मोर देन द आउटर रिसोर्स का यूसेज, इट इज द इनर रिसोर्स का यूसेज. अपॉर्चुनिटी टू यूज एंड शो योर कैपेसिटी टू यूज टू शो योर इनर रिसोर्सेज. High degree of reasoning ability, high degree of effective intelligence, structure analysis, analytical skills, observational skills. उनको ओएल की डिकोडेड वीडियोस देखना, रीजनिंग एबिलिटी, स्पीड ऑफ डिसीजन, इफेक्टिव इंटेलिजेंस, पावर ऑफ एक्सप्रेशन, देन you'll understand what I'm trying to say. You'll have to link all of them, all those videos जो मैं अब तक बनाया हुआ है. Anyway, let's move further. Next it says, as the name implies, in this task I will divide your group into two subgroups and give each subgroup an obstacle to tackle one after the other in a manner that while one subgroup is working, the other will not be allowed to watch it. क्यों? ताकि दूसरे ने देख लिया तो फिर तो उसको वैसे ही समझ में आ जाएगा, कोचिंग हो जाएगा उसका, तो कोचिंग वाले सर की तरह. सो व्हेन वन इज वर्किंग द अदर इज लुकिंग समवेयर एल्स. ठीक है ना. नाउ नेक्स्ट, ये जो ग्रीन वाला बड़ा इंटरेस्टिंग लाइन है, द ऑब्स्टिकल विल बी लाइक एन ऑब्स्टिकल ऑफ पीजीटी. बोलता है नाम हाफ ग्रुप टास्क है, लेकिन जो ऑब्स्टिकल होगा वो बिल्कुल पीजीटी की तरह होगा. ओनली थिंग इज थोड़ा सा उसका लेवल ऊपर होगा, पीजीटी 1 और 2 की तरह नहीं होगा. क्यों? बिकॉज उसका पर्पस अलग है. विल सी दैट, है ना. सो दोबारा इस लाइन को पढ़ता हूं, ग्रीन को. द ऑब्स्टिकल विल बी लाइक एन ऑब्स्टिकल ऑफ पीजीटी, है ना. द सेम रूल्स विल अप्लाई therefore the same rules will therefore apply except the group rule, as there is only one up. So whatever rules were there वो यहाँ पे भी लगे. So यहाँ पे क्या हुआ, नीचे देखो 10 का ग्रुप था या 8 का ग्रुप था, उसको तोड़ के क्या बना दिया, 5-5 का बना दिया. 9 का होता तो 5-4 का बन जाता. ग्रुपिंग कैसे होता है वो बाद में देखेंगे, है ना. दूसरी बात क्या बोलता है कि द टास्क इज सेम एज इट इज इन द पीजीटी. सो कोई ज्यादा फर्क नहीं है. ओनली थिंग स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द स्ट्रक्चर इज डिफरेंट. स्टार्ट लाइन है, फिनिश लाइन आपने क्रॉस करना, बड़ी सिंपल सी बात है. पहले आप यमुना नदी तैर रहे थे, आप गंगा तैरोगे. पहले 4 नदियों को तैरा, अब यहाँ पे 1 को तैरोगे. इतना ही है, ज्यादा फर्क नहीं है, है ना. और दूसरा इसमें ग्रुप जो रूल्स है वो सेम है. ग्रुप रूल, डिस्टेंस रूल, कलर रूल, रूल ऑफ रिजिडिटी, रूल ऑफ इन्फिनिटी. नाउ ये जो लाइन है ग्रीन वाला, द ऑब्स्टिकल विल बी लाइक एन ऑब्स्टिकल ऑफ पीजीटी. I will take this line separately in the second last slide and I'll talk something more. तो इसको ध्यान रखना इसको. The obstacle will be like an obstacle of a PGT. Okay, क्या बोलूँगा आगे देखेंगे. Next, each subgroup will get 15 minutes to negotiate the obstacle. Are there any questions? So how much time? 15 minutes. यानी कि आपने स्ट्रक्चर एनालिसिस करना है, आइडिया क्रिएशन करना है और ग्रुप के साथ मिलके आइडिया को एग्जीक्यूट करना है. ये सब कितने टाइम में करना है? 15 मिनट्स. इसका मतलब है ना, अगर 3 अप्रोच है तो जीटीओ 1 को ठीक आप करोगे तो ही कैन इवन फोर्स यू टू स्विच अदर्स. सो ऑल दोस थिंग कैन हैपन. सो 15 ग्रुप्स. वंस द फर्स्ट ग्रुप फिनिशेस द सेकंड विल बी कॉल्ड, है ना. सो नंबर so and so will make first subgroup and number so and so will make the other. ये so and so grouping कैसे होता है हम इसको बाद में देखेंगे, है ना. It's not something randomly made. There is a purpose. But आप लोगों के लिए कोई मतलब नहीं. आपका काम सिंपल है, स्टार्ट लाइन शुरू करो, फिनिश लाइन. मेरे लिए बड़ा मतलब है एज अ जीटीओ, है ना. So, मैं तो छोड़ो, अब तो मैं कोचिंग में आ गया हूँ. Those people who are there, they do it with a purpose. बहुत जबरदस्त पर्पस होता है. We'll see that. Next is one subgroup will stay back and I shall take you to the obstacle. Other will run back to the assembly area till they are called. So एक ग्रुप को यहाँ पे टास्क पे लेके जाएगा, दूसरे ग्रुप को वहां पे बैठा देगा उल्टा करके. क्यों? ताकि आप ना देख लो, वरना आपकी कोचिंग हो जाएगी. So that is that. So this is the briefing for the half group task, right? So I hope the briefing is clear. So the briefing for the PGT is more elaborate because of the first outdoor task. उसके बाद में command task बोलता है कि it is identical. उसके बाद HGT में भी it is identical. So briefing बड़ा छोटा छोटा and first group करेगा, second करेगा and all those things. So now let's come to an important thing. You would have seen here, इसको मैंने बोला था, इसको ग्रीन वाले को, द ऑब्स्टिकल विल बी लाइक एन ऑब्स्टिकल ऑफ ए पीजीटी, है ना. द सेम रूल्स विल देयरफॉर अप्लाई इन ऑल दोस थिंग्स. नाउ इसको मैं हाईलाइट करता हूं. द ऑब्स्टिकल्स विल बी लाइक एन ऑब्स्टिकल ऑफ पीजीटी. एंड आप दोबारा कमांड टास्क का ब्रीफिंग में जाना, वहां पे भी बोला था दैट कमांड टास्क, even though you will be doing as an individual, the obstacle will be similar to that was in the PGT. यानी कि there is similarity.
Only thing is the format of doing it is different. Sometime I told you it can be a circular task, but the point is structure होंगे उसमें और आपने उसको करना है। Now मेरा क्वेश्चन ये नहीं है, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर पीजीटी, एचजीटी, कमांड टास्क इन सबके स्ट्रक्चर अगर एक ही है तो वाई देयर इज अ कोचिंग सेंटर इन चंडीगढ़ जिन्होंने एक कीड़ा छोड़ रखा है ना, उन्होंने एडवाइस टू कैंडिडेट ऑन सेलेक्टिंग बेस्ट एसएसबी कोचिंग में एक बहुत ही मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है। उन्होंने बोला बाकी लोगों को, मेरे जैसों को उन्होंने मम्मी डैडी कोचिंग सेंटर बोला, अपने आप को दादा दादी बोलते हैं, और उन्होंने लिखा है कि किसी भी कोचिंग सेंटर को सेलेक्ट करने से पहले कैंडिडेट्स हैव टू चेक दैट द फॉलोइंग इज मैंडेटरी फॉर द जीटीओ ग्राउंड फैसिलिटीज, मिनिमम 2 पीजीटी होना चाहिए। सो मतलब आप एफओसोप में आते हो तो पहले मुझसे चेक कर लेना कि मेरे पास 2 पीजीटी, 2 एचजीटी, 8 से 10 कमांड टास्क, 6 इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल एंड 6 ग्रुप ऑब्स्टिकल और 10 इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल होने चाहिए, मेड टू द एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन ऑफ एसएसबी। वो एसएसबी से मेरे को टपा के लाना पड़ेगा, ये एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है। अब मेरा सवाल है, Who told it is mandatory? क्या DIPR ने बोला है कि अगर जो भी एसएसबी कोचिंग चलाएगा उनको ये मैंडेटरी ये होना चाहिए वरना एसएसबी कोचिंग नहीं चलाएंगे? या आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के रिक्रूटिंग डायरेक्टोरेट ने बोला? किसने बोला? या आईएसओ सर्टिफिकेशन के टाइम में बोला था कि भैया हम आपको आईएसओ सर्टिफाइड देंगे अगर आपके पास 2 पीजीटी, 2 एचजीटी, 8 से 10 कमांड टास्क, 6 ग्रुप ऑब्स्टिकल और 10? किसने बोला है? किसने बोला है? कोचिंग वाले सर मुझे भी तो बताओ ताकि मैं भी आपकी तरह अच्छा कर सकूं। क्योंकि मुझे ये जानना है किसने बोला और क्यों बोला, और जिसने भी बोला उसका इंटेंशन क्या है, उसका मोटिव क्या है। चंडीगढ़ वाले कोचिंग सर ने इस तरह का एडवाइस डाल के क्या बोल रहे हैं? क्या वो अपने आप को बरगद का पेड़ तो नहीं बना रहे ताकि मेरे जैसे एफओसी वाले कहीं पनपे ना? किसने बोला? आई वॉन्ट टू नो। तुम तो पूछोगे नहीं क्योंकि तुमको तो बोलेंगे ऑफिसर बनना, तो चुपचाप सुनो। मैं पूछ रहा हूं, मैं भी इन्हीं की तरह बनना चाहता हूं, नंबर 1 कंट्री में। किसने बोला? DIPR ने बोला आपको? अरे मुझे तो DIPR ने ये बोला बच्चों का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन स्किल्स देखो, थियोरेटिकल नॉलेज को कैन दे अप्लाई, और उसके कुछ टूल्स है। आप बोलते हो कि नहीं ये चाहिए, इसके बिना आप कर ही नहीं सकते। समझ में नहीं आया सर। आई स्टिल वांट टू नो हु हैज टोल्ड कि दिस इज मैंडेटरी। ये कोचिंग वाले सर बोल रहे हैं या DIPR ने बोला, रिक्रूटिंग ने बोला या आईएसओ ने बोला? आईएसओ सर्टिफिकेशन के टाइम में क्या उन्होंने कंडीशन लगाया था कि भैया आपके पास 2 पीजीटी ये सब होना चाहिए? मुझे बताना पड़ेगा आपको, वरना बहुत गलत हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत मिसलीडिंग है। और इसके बाद इन्होंने देखो अगले में क्या लिखा है, इससे उनकी मंशा भी पता चल जाती है। लिखते हैं कि ऑथेंटिक outdoor task made to the exact specification of the group task made at ground of the so and so aptly located in Shivalik Hill, Chandigarh, sprawling 2.5 एकड़ की जमीन में 2 पीजीटी, 2 एचजीटी, 2 कमांड टास्क, है ना, फॉर रियलिस्टिक वो पता नहीं 100% स्पेसिफिकेशन। तमाशा क्या क्या, शादी से पहले सुहागरात करा रहे हैं कोचिंग वाले सर। क्या बोल रहा हूं, दोबारा बोलता हूं, शादी से पहले सुहागरात की ट्रेनिंग करा रहे हैं। यानी कि कसब जब ताज के अंदर घुसेगा उस टाइम संदीप उन्नी को कुछ ने अंदर जाके उसने सारा सिचुएशन को समझ के हैंडल करना है। उसकी जगह कोचिंग वाले सर बोल रहे नो, आपको पहले ताज में घुसना पड़ेगा कसब के साथ, ओनली कसब के हाथ पीछे बांध देंगे ताकि आपको रियलिस्टिक ट्रेनिंग मिल जाए। अरे यार ऐसा कभी होता है? सर्जिकल स्ट्राइक से पहले ट्रेनिंग होता है? प्रिंस गड्ढे में गिर के, प्रिंस गड्ढे में गिरने की पहली ट्रेनिंग होती है? पूरी 30 साल के सर्विस में मैंने टिन के पतरे पे ही मारा है, टारगेट पे गोली। कभी मैंने 2 चाइनीज, 2 नक्सलाइट, 2 पाकिस्तानी और इनको नहीं मारा है। किस पे मारा है? पतरे पे। तो ये क्यों बोल रहे हैं? आजकल तो सब सारा खेल सिमुलेटर पे होता है, इवन फायरिंग इज ऑन द सिमुलेटर। आजकल तो फाइटर जेट को भी पहले सिमुलेटर पे चलाते हैं, और ये बोलते हैं ना 2.5 एकड़ की जमीन चाहिए। देखो भैया आपके पास पैसा हो, मेरे पास नहीं है, और कोई ऐसा मेरे से पूछता है आई डोंट हैव दिस एंड नाइदर आई वांट देम। क्यों नहीं चाहिए? उसके लिए मैं एक उदाहरण देता हूं ना। एक काम करना, कुछ लोगों के मैं नाम दिखाऊंगा। ये लोगों ने 2.5 एकड़ की जमीन पे ट्रेनिंग करके आए, बहुत पैसा खर्च किया नंबर 1 के साथ, आईएसओ सर्टिफिकेट के साथ, और उसके बाद में इन्होंने मेरे पास आया और मैंने इनसे स्ट्रक्चर एनालिसिस कराया। इनकी तो बैंड बज गई, इनको तो समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। वहां पे इनको भेड़ की तरह चढ़ा दिया। सो आई वांट टू नो, आप इनसे जरा एक बार बात करना। पहले है रविंद्र कुमार, ये बैंगलोर के रहने वाले, चंडीगढ़ जाकर ट्रेनिंग करके आए थे 2.5 एकड़ की जमीन पे। ये संजय बिष्ट नैनीताल से, पहले चंडीगढ़ के, उसके बाद मेरे पास है ना। उसके बाद विकास कुमार रोहतक के, ये पहले चंडीगढ़ गए फिर मेरे पास है ना। फिर श्याम कुमार जी, सत्यम कुमार जी विशाखापट्टनम से चंडीगढ़ गए फिर मेरे पास है। उसके बाद ये एस साईनाथ तो 2 बार दिल्ली में गए, वहां पे भी बहुत सारे नंबर 1 है। उसके बाद 2 बार चंडीगढ़ में, एक ही के पास है, कौन है पूछ लेना आप,
है ना। फिर उसके बाद मेरे पास है साईनाथ ने 4 कोचिंग में बोलता है सर मेरा करीब 1 लाख रुपए से ऊपर खर्च हो गया, अब जाके पता चला एसएसबी होता क्या है। तो ये क्या कर रहे थे नंबर 1 इनके साथ। नेक्स्ट इज विजय सिंह, भोपाल से पहले चंडीगढ़ गए, उसके बाद मेरे पास आए थे, है ना। 2.5 एकड़ पे ये सब 6 की 6 ट्रेनिंग करके आए, हर वीडियो में दूंगा। अब मुझे सवाल बताओ कि किसने बोला ये 2.5 एकड़ की जमीन और मैंडेटरी 2 पीजीटी होना चाहिए, है ना। आप लोग जरा इन लोगों से बात करना, इनके नंबर लिखे हुए, और मैं ये पूछना चाहते पहले सुहाग के ट्रेनिंग के लिए, देन व्हाई दीज कैंडिडेट्स फील अदरवाइज, क्यों इन्हें लग रहा है कि इनके साथ गड़बड़ कर दिया कोचिंग वाले सर ने, झांसे में फंस गए, है ना। Why did they choose to come to AFOSOP पुणे? मैं तो मम्मी डैडी कोचिंग सेंटर हूं, मेरे पास तो 2.5 एकड़ भी नहीं है, मेरे पास तो सब 2.5 फीट का एक टेबल है। तो ये क्यों आए? आप अगर इतने अच्छे हो, आपके कोचिंग वाले लड़के छोड़ के क्यों आ रहे? मुझे एक लड़के का नाम बता दो जो AFOSOP करके आपके पास आए। एक का मैं बताता हूं, शैलेंद्र यादव है, मार्कोस बॉम्बे का, जो उसके मम्मी पापा के प्रेशर में वो चला गया, उसकी फोटो डालूंगा, वो वहां पे हर दिन को रिंग करता रहता था। सो आई वांट टू नो व्हाई दिस काइंड ऑफ अ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट एंड व्हाई दीज बॉयज हैव कम एंड यू नो, आपके 2.5 एकड़ की ट्रेनिंग करने के बाद में व्हाई दीज बॉयज आर नॉट एबल टू एनालाइज द स्ट्रक्चर, व्हाई दे आर नॉट एबल टू क्रिएट आइडिया, व्हाई दे आर एम्फसाइजिंग ऑन सर फट्टा उठा लूंगा, लोड उठा लूंगा, व्हाई ये रटे रटाए सोल्यूशन लेके क्यों आए मेरे पास, और क्यों जब इनको छोटा सा एक टास्क दिया इनकी क्यों बैंड बज गई। जरा आप चेक करो एंड अपने एडवर्टाइजमेंट को चेंज करो, बिकॉज योर एडवर्टाइजमेंट इज क्रिएटिंग कंफ्यूजन। Please change your advertisement because it is completely misleading. And very soon I'm going to make a final group task briefing, and after I do that I'll make a comparison of PGT, HGT and all that, and then I'll clearly show you करना क्या है और आपकी ट्रेनिंग क्या हो रही है। You have to understand, some of the candidates से सर आपके कोचिंग वालों के पीछे क्यों पड़ गए, इसलिए पढ़ा हूं कि बड़ा दुख होता है कि मेरे जैसे लोग हैं ना 50 की उम्र में, when we have to give back to the society, to the young boys and girls, instead of giving direction, why are we misguiding them? इसलिए बड़ा तकलीफ होता है, इसलिए मेरे को बड़ा खुंदस होता है। मुझे इसलिए खुंदस होता है, मैं एक जवान से बना हूं, एक्स कमीशन हूं, घिस घिस के बना, बहुत मेहनत किया है, और ये बच्चों को ऐसे गुमराह करने वाली ट्रेनिंग क्यों दे रहे हो? आई डोंट अंडरस्टैंड। कोई कोचिंग वाला बोलता कि रस्सी बांधने वाले को जीटीओ देखता नहीं देखता, कोई बोलता लोड उठाओगे तो फॉलोअर बन जाओगे, नहीं भाई कुछ और है। यू आर नॉट डेवलपिंग लीडरशिप माइंडसेट, यू आर डेवलपिंग सम स्किल सेट्स, वो भी साला रट के। नो यार, किसी ने बहुत घुंडी कैंडिडेट्स को फैला दिया है कि टीएटी, डब्ल्यूएटी, एसआरटी अच्छा करने से आपका रिकमेंड हो जाएगा, पर्सनालिटी डेवलप हो जाएगा। नहीं होगा, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा तब टीएटी अपने आप ठीक हो जाएगा, है ना। इसको समझने के लिए कॉन्ग्रुएंस इन साइकोलॉजिकल टेस्ट पार्ट 2 देखना। कौन सा? कॉन्ग्रुएंस इन साइकोलॉजिकल टेस्ट पार्ट 2, तब आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूं। यार ये टेस्ट जो है ना एसएसबी का, ये एकेडमिक टेस्ट नहीं है, ये गलत तरीके से आप ट्रेनिंग कर रहे हो। आप लोग जो मेरे पास लड़के लड़कियां आती है, आई फाइंड मेनी ऑफ देम आर वेरी गुड, मेनी ऑफ देम, नॉट ऑल ऑफ देम, मेनी ऑफ देम, मोस्ट ऑफ देम आई विल नॉट से, मेनी ऑफ देम, बट आपको पता ही नहीं कैसे करना। आप एक ऐसी गाड़ी चला रहे हो जिसके विंड स्क्रीन पे ग्रीस लगा हुआ है, ऊपर से मिट्टी डाला है, और स्टीयरिंग व्हील है ही नहीं, वो रॉड लेके उसी में एक्सीलेटर दबा रहे, आपको कहां जाना ही पता नहीं है। और मेरे जैसे लोग जो हम सिस्टम में रहते थे, हम लोग बाहर आके आपका हिंदी में बोले तो साला चार्ली काट रहे। चार्ली का हिंदी पता होना क्या होता है? मेरे को बोलने का मन कर रहा, तुम लोग समझ लो। सो समवेयर कहीं ना कहीं बहुत गड़बड़ हो रहा बच्चों के साथ, एंड आई एम वेरी सॉरी कि people who are involved in selection system, good assessors, they're coming out and instead of developing the personality, they are telling कि फट्टा उठा लो, ब्रिगेड वाला आइडिया, रस्सा बांध लो एंड 100% पे कर लो, शादी से पहले सुहागरात कर लो, डेली साइकोलॉजिकल टेस्ट रहने से ठीक हो जाएगा। नो यार, बहुत गलत। मुझे बहुत खुंदस आ रहा है ना। सम पीपल से छोड़ो सर उन लोगों को, अरे कैन नॉट यार, सत्यानाश कर दिया देश में, इतना डेफिशिएंसी ऑफ ऑफिसर्स बिकॉज लड़कों को पता ही नहीं करना क्या। एनीवे, चलो ओके। Now, since there is a lot of request for structure analysis, I don't know whether I'll be able to put it here because ये तो कोचिंग वाले मुंह खोल के बैठे कि structure analysis डाले और खींच ले। What I will do is structure analysis, gap analysis, GTO outdoor task, and in the psychological test, I'm making it free. आप लोग कभी भी किसी भी 2 दिन, Monday and Tuesday को, you can come here and you can exactly will come to know where do you stand in the GTO outdoor task and where do you stand in the psychological test in terms of congruence and what is the gun that you're holding inside, ताकि इसके बाद में अगर even if you don't want to join any coaching center, even if you want to prepare, you must know which way to take. अगर आपको रास्ता ही नहीं पता, आप भटकते रह जाओगे। So I will request you, please come and attend this free seminar on Monday
oblique Tuesday that I'll make up analysis, and उसके बाद आपको exactly पता चल जाएगा कितना भरना है, and ठीक है ना, एंड दीज आर द थिंग, दिस पिछले वीडियो में मैंने डाल दिया था ये सब. अगर इन केस ऑफ जीटीओ थिंग आई मेक इट एब्सोल्युटली क्लियर फॉर यू कि आपको कहां पे किस जगह पे प्रॉब्लम आ रहा है, कहां पे अटक रहे हो, किस लेवल में यूर राइट नाउ ऑपरेटिंग, स्ट्रक्चर को कितना हैंडल कर पा रहे हो, है ना. ऑल्सो इन द सेम वे विल डू इट फॉर साइकोलॉजिकल टेस्ट, एंड रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी इवन दो द क्लासेस विल बी फ्री ऑन मंडे एंड ट्यूसडे फॉर पीपल डेमो क्लास वाले के लिए. एंड दिस इज द नंबर ऑन विच यू हैव टू call for registration, and this is the email ID afosop@gmail.com. kindly share it. I'm very surprised कि आप लोग साला इस वीडियो को शेयर भी नहीं पहुंचाते हो. Anyway, इसके अलावा those of you are interested in attending the AFOSOP Leadership and Personality Development Program, which is DIPR DRDO appreciated project. We have got 4 weeks course, 3 weeks and 2 weeks. 1 week is also there, but not recommended for anyone. उन्हीं के लिए जिनकी मजबूरी है. And these are the batch schedule. हर मंडे को बैच शुरू होता है. 16, 23, 30th को अक्टूबर बैच शुरू होगा. नवंबर का 6, 13, 20 and 27. दिसंबर का 4, 11, 18, 25. So before you finalize your date, especially for outstation students, you must give me a call and confirm your date, so that अगर मेरा कोई left right planning हो तो I can communicate, and only then you do the real reservation. This is the institute address, and registration के लिए these are the 3 numbers on which are on WhatsApp, and also on the email you can register. And hostel/PG चाहिए तो इस नंबर पे करना जो 2 नंबर दिए हुए. And I will request you to post your comment. आपके कमेंट्स मेरे को बहुत एनकरेज करता. देखो यार, मुझे भी कुछ मोटिवेशन चाहिए. एक छोटा सा कमेंट मांग रहा हूँ, साला पैसे थोड़ा ना मांग रहा हूँ, ये थोड़ा ना बोल रहा हूँ मेरे को मेरे अकाउंट में पैसे डालो. आई जस्ट नीड सम कमेंट्स यार, बिकॉज दैट एनकरेजेस मी, इट मोटिवेट्स मी टू मेक वीडियोस. एनीवे, इसको शेयर करना और सब्सक्राइब करो तो कि आपको इमीडिएटली मिल जाए. एंड डू टेल मी हाउ दीज वीडियोज आर हेल्पिंग यू, एंड इफ यू नीड एनी स्पेसिफिक वीडियो दैट ऑल्सो कैन बी कम्युनिकेटेड इन द कमेंट बॉक्स. एंड आई होप these videos are helping you, and thank you, and may God bless you. Do post your comments. Thank you very much.